हेलो एवरीवन, कैसे हो बेटा? होपफुली बहुत अच्छे होगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। इससे पहले कि जो मैंने आपको पढ़ाया है थोड़ा सा एक रिकैप देता हूँ, जस्ट वॉच। जैसे कोई क्वेश्चन आ जाए, कैन यू कंपेयर मोलैरिटी एंड मोलैलिटी? As you know, both are the units of concentrations. ठीक है, molarity and molality. Now, how can you compare these two terms? So, if you want to compare these two terms, you should know about the definitions. जानते हो आप इनकी definitions? ठीक है, अब तो वो टाइम नहीं रहा है, तो डिस्कशन ऑलरेडी हो चुकी है। ठीक है, molarity, it is represented by capital M, and it is what? Number of moles of solute, volume of solution in liter. Molality represented by small m, and it is also defined as number of moles of solute divided by volume of solution in liter. Sorry, number of moles of solute divided by weights of solvent in kg. अब जरा ध्यान से देखिए, this is the unit of concentration of the solution in which we take number of moles of solute, volume of solution in liter. This is also unit of concentration of solution in which we take number of moles of solute and weight of solvent in kg. दोनों ही unit of concentrations हैं, but दोनों को फाइंड करने के तरीके अलग अलग हैं। इन दोनों में आपको जब कभी मोलारिटी फाइंड करना हो, मोल्स पर लीटर में निकालोगे, और मोलारिटी फाइंड करना हो तो मोल्स पर केजी में फाइंड करेंगे। दोनों में फर्क ये है कि हमें मोलारिटी बेटर यूनिट लगती है। मोलारिटी इज बेटर वन बिकॉज इट इज इजी टू कैलकुलेट। क्यों? यहां पे आपको वेट चाहिए, वो भी सॉल्वेंट का, अकेले सॉल्वेंट का, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के चाहिए। एज कंपेयर यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट तो चाहिए, लेकिन हमें यहाँ चाहिए वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ये जो V है, हमें वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन का चाहिए, और यहाँ पे जो वेट है, ये हमें वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। इसके अलावा ये जो यूनिट है, विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर यू नो वॉल्यूम इंक्रीजेस। जब कभी आप किसी चीज का टेम्परेचर बढ़ाते हो तो पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। वॉल्यूम अगर इंक्रीज होगा विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा, देन बताइए मोलारिटी में वॉल्यूम नीचे लिखा है, सो मोलारिटी डिक्रीज करेगी। दैट मीन्स इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, it is temperature dependent and decreases with increase of temperature. Here in case of molarity there is no volume. These are the number of moles of solute not affected by temperature. This is the weight of solvent not affected by temperature. So there is, we can say molarity is temperature independent. It is temperature independent. So always when you have to compare molarity and molality, we have to prefer molality over the molarity. Molality को आप पहले prefer करोगे than molarity, because this one is easier to find out, because here only solvent, weight of solvent is required. Comparatively, it is difficult to find out because we have to find out volume of solution, and we have to find out volume of solution first. So we should take particular container, flask, ठीक है, in which measurements is mentioned. मतलब हमें पता होना चाहिए कि वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करना है। वेट के लिए कोई ऐसी बात नहीं है। If you want to prepare the solution molarity, take 1 kg solvent and add 1 mole of solute. Simply it can be prepared, but इस केस में आपको पहले मेजरमेंट लेना होगा। ठीक है, that will give you 1 liter solvent
1 लीटर सोल्यूशन चाहिए बल्कि हमें, फिर हम सोल्यूट ऐड करेंगे तब ये फॉर्म होगा। सो ऑलवेज जब कभी भी आपको कंपैरिजन आए आप इस टाइप से इसको एक्सप्लेन करिए। बेटा कई बार क्वेश्चन जब आपसे पूछे जाते हैं तो ये ऐसे पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 1m एंड 1m। 1m it means you have 1 molar solution, 1m it means you have 1 molar solution. It means molarity is 1. It means molarity of solution is 1 mole per liter. जहाँ molarity 1 होती है वहां पे वर्ड आता है molar. It means molarity is 1, that is 1 mole per kg. It is represented 1 mole per kg and it is represented 1 mole per liter. Understand? So this is the basic difference between these two. Now in the unit of concentrations, sometimes we have to compare between molarity and formality. ये दो टर्म भी बेटा काफी यूजफुल है और काफी कंपेयर होते हैं कि आखिरकार मोलारिटी और फॉर्मेलिटी में क्या फर्क है। तो जब कभी आपको मोलारिटी की बात की जाए, कैपिटल M, इट्स अ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर आप ऐसे फाइंड करोगे तो मोलैरिटी मिलेगी। अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस करा था मोलैरिटी को कैसे फाइंड आउट करना है। गॉट इट? दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। दिस इज द मोलैरिटी। इफ वी टॉक अबाउट फॉर्मेलिटी, formality is defined as number of moles of formulas of solute divided by volume of solution in liter। बेसिकली क्या है बेटा, जब कभी आपको वेट या मोलिकुलर मास की टर्म की बात आए तो जनरली वी यूज द टर्म ग्राम मोलिकुलर मास एंड फॉर्मूला मास। ये ग्राम फॉर्मूला मास। ग्राम मोलिकुलर मास इज एप्लीकेबल फॉर द मॉलिक्यूल्स। ये मॉलिक्यूल्स के लिए एप्लीकेबल है। Gram formula mass is applicable for the formulas, ठीक है, and formula term is useful for ionic compounds। जैसे सपोज आपके पास है H2SO4, तो मैं आपको कहूंगा ग्राम मोलिकुलर वेट ऑफ H2SO4 इज 98 यूनिट। इसको ऐड करूंगा तो ये मिलेगा। Similarly, for ionic compounds like NaCl, we never use the term gram molecular mass. We use the term formula mass. Okay, so for ionic compounds, we use the term formula mass. For example, for NaCl, you get formula mass 23 plus 35.5, you get 58.5. देखो फाइंड आपने मोलिकुलर मास ही किया है, लेकिन आयनिक कंपाउंड्स के सॉल्यूशंस के लिए, आयंस के लिए स्पेशली वी यूज द टर्म ग्राम फॉर्मूला मास। और बस इतना ही फर्क है, इसीलिए इन केसेस में हम नंबर ऑफ मोल्स लिखते हैं और इन केसेस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फॉर्मूलाज लिखते हैं। बेसिकली मोलारिटी और फॉर्मेलिटी में कोई फर्क नहीं है, दोनों को एक ही तरीका से फाइंड आउट किया जाता है, सिर्फ इनकी टर्मिनोलॉजी में डिफरेंस है। इफ यू टॉक अबाउट फॉर द आयनिक कंपाउंड्स, if you find out molarity of ionic compounds where molecular mass referred as the gram formula mass, for ionic compounds in case of molarity we say it is a formality।
but for all other type of solutes except ionic compounds we generally use the term molarity and find out the molarity. Find दोनों को same करेंगे, but it is formality is applicable for ionic compounds because number of moles of formulae it means weight over formula mass. Number of moles का मतलब है weight over molecular mass. तो कुछ इस तरीका से बेटा इनके डिफरेंस को हम कंपैरिजन करते हैं, ठीक है. मोलारिटी एंड फॉर्मेलिटी में क्या डिफरेंस है? इट इज फॉर ओनली योर नॉलेज, ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे इन चीजों में. ऐसे बेटा कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स एंड मोल. मोल और मॉलिक्यूल में क्या फर्क है? सिमिलरिटी, दिखने में सिमिलर है तो क्या मतलब है? मॉलिक्यूल इज व्हाट? इट्स अ ग्रुप ऑफ एटम्स in which atoms are combined together in the definite proportions, in which two or more atoms combine together in the definite proportions, Mole is what? It's a fundamental unit in which 1 mole of any substance is 6.0224 10 power 23 numbers. So mole और molecule का कोई relation ऐसे नहीं है. हाँ, अगर मेरे पास 1 mole कोई molecules हैं, then we can say कि मेरे पास 6.0 10 power 23 molecules हैं. Mole is the fundamental unit in which number of molecules, number of atoms, number of ions can be found out with the help of Avogadro number. Understood? So this is the basic difference between molecules and mole. ठीक है. Now remaining, अभी आप ये रीड करिए, वॉच करिए, और अब इसमें जो सॉल्यूशंस में नेक्स्ट टॉपिक है टू कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मलिटी. ठीक है. नॉर्मलिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में भेजता हूँ. ठीक है. बेटा इसको देखिए और प्रॉपरली अंडरस्टैंड करिए. इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन कॉल मी. ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट.